قراردادوں کے مطابق ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس کا حق صرف کشمیریوں کو حاصل ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کدھر جانا ہے۔ دراصل ان حکمرانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر کا مقدمہ کیا ہے۔ جب ہمارا وزیر خارجہ کھڑے ہو کر اسمبلی کے اندر یہ کہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو یہ کشمیر کے مقدمے کو پاکستان کمزور کر رہا ہے، پاکستان کے موجودہ حکمران کمزور کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا کیس نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یہ انڈیا کا کیس ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے۔ چونکہ راجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا اور انڈیا یونائٹڈ نیشن کے اندر گیا تھا، پاکستان نہیں گیا تھا، انڈیا گیا تھا۔ اور پاکستان جب گیا اپنا تحفظ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، اپنا جواب دینے کے لیے، تو 1948 کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ طے ہوا کہ اب کسی ریاست، کسی علاقے کا سربراہ، والی، بادشاہ یا حکمران فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس علاقے نے کدھر جانا ہے۔ رائے شماری کے ذریعے اس خطے، اس علاقے کی عوام فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے۔ پاکستان کا کیس مضبوط ہو گیا، انڈیا یونائٹڈ نیشن سے بھاگنا شروع ہو گیا۔ پاکستان کے تمام سمجھدار حکمرانوں نے اسی کیس کو لڑا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بطور وزیر خارجہ اسی کیس کو لڑا تھا۔ جب لڑتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ انڈیا کے وزیر خارجہ سورن سنگھ کو پسینے آتے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو بات کرتے تھے، تو یہی مقدمہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے لڑ کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں۔ ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ عمل درآمد کریں۔ ہاں، کشمیری کہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو ان کا حق ہے کہ وہ جدھر جانا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہے، جس کے ساتھ جانا چاہے۔ پاکستان ہمیشہ مطالبہ کرتا ہے کہ تو استصواب رائے کرائیں، پلیبسائٹ کروائیں، رائے شماری کروائیں۔ یہ پاکستان کا کیس ہے اور یہ موجودہ حکمرانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر تو یہ سودا کر کے آئے ہیں تو پھر یہ کیس جو آج یہ پیش کر رہے ہیں یہ کریں، لیکن یہ پاکستان کا کیس نہیں ہے۔ پاکستان کا کیس مختلف ہے۔ آپ یہ کیا کہاں پہ آ کھڑے ہوئے ہیں؟ صدیقی صاحب آپ کہہ رہے تھے مجھے شرم آتی ہے۔ جن کو شرم آنے چاہیے انہیں تو شرم نہیں آتی، تو ہمیں کیسی شرم ہے؟ چونکہ ایک وہ قائد تھا جس نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑوں گا، اور یہ 1 منٹ کی خاموشی پہ آ گئے۔ ایک وہ قائد تھی جو کہتی تھی کہ کشمیریوں کا جہاں پسینہ گرے گا ہم اپنا خون وہاں پہ گرائیں گے، ہمارا خون بہے گا، اور یہ ایک گانے پہ آ گئے ہیں۔ ایک وہ قائد تھی جس نے کہا تھا ہمارا یہ قائد ہے جو کہتا ہے کہ ہاں کشمیری فیصلہ کریں گے، ہم آدھے کشمیر کی بات نہیں کر رہے، پورے کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو نے کہا تھا، اور یہ کشمیر ہائی وے کا نام شری نگر ہائی وے رکھ کے خوش ہو رہے۔ آپ جو نقشہ جاری کرتے ہو کیا نیا ہے اس میں؟ اس نقشے کے اندر آپ نے کشمیر کو شامل کر لیا، آپ نے کشمیر کو شامل کر لیا اس نقشے کے اندر، اور اوپر لکھ دیا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، ایک متنازع علاقہ۔ تو یہ تو پہلے سے موجود ہے، نیا کیا ہے اس کے اندر؟ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں، فرق واضح کرنا چاہتا ہوں پریس کے دوستوں کے سامنے۔ انڈیا کی اسمبلی کا چیف منسٹر ہوتا ہے، انڈیا کی اسمبلی کا ہوتا ہے چیف منسٹر، وہاں پہ گورنر ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے کشمیر کا صدر کشمیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، آئین ساز اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے عالمی قراردادوں کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا درجہ دے رکھا ہے، اور اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نہ پاکستانیوں کو یہ قابل قبول ہے، اور نہ یہ کشمیریوں کو۔ کشمیریوں کی آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی کسی
किसी का गासबाना कब्जा कबूल नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी का फैसला करेंगे। ये पाकिस्तान का केस है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस है। इस पे लड़ो। और आप क्या कर रहे हो? आप एक सारा साल आप बताइए आपने क्या किया है? कहता था मैं आधा घंटा बैठूंगा, आधा घंटा हर जुमे को एहतजाज करूंगा। किधर है आपका एहतजाज? आपकी खामोशी बहुत सारे सवालात जन्म दे रही है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक साल की खामोशी के बाद यौम इस्तेहसाल, 1 मिनट की खामोशी। और इस्तेहसाल तो बहुत कमजोर लफ्ज है। इस्तेहसाल का क्या मतलब हुआ? इस्तेहसाल तो यहां पे भी हो रहा है मजदूरों का, इस्तेहसाल तो किसानों का भी हो रहा है, इस्तेहसाल तो मीडिया के वर्कर्स का भी हो रहा है, इस्तेहसाल तो सारी कौमियतों का भी हो रहा है, इस्तेहसाल तो पिछले 70 साल से कश्मीर का भी हो रहा है। इस्तेहसाल क्या हुआ? हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया है और हम मुतालबा करते रहेंगे कि हम इंडिया के गासबाना कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। तुम कहते हो कि इंडिया आलमी सफारती तन्हाई में चला गया है। क्यों झूठ बोलते हो लोगों से? इंडिया ने जब कब्जा किया तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके 54 उसके मेंबर्स हैं। आपको 17 वोट नहीं मिले कि आप वहां पे ह्यूमन राइट्स का मुकदमा लेकर चले जाए। 17 वोट नहीं मिले, जिसमें 21 इस्लामी मुमालिक हैं। आपको उसमें से 17 वोट नहीं मिल सके। और एक वो कायद था जिसने इस लाहौर के अंदर दुनिया के तमाम इस्लामी सरबराहों को इकट्ठा करके दिखा दिया और कहा कि ये होती है सफारतकारी, ये होती है सफारतकारी। ये कहते हैं हमने कश्मीर को, ये कहते हैं हमने कश्मीर के इस कब्जे के बाद इंडिया को आलमी तन्हाई में ला खड़ा किया है। वो कैसी आलमी तन्हाई? आप तो अपना केस इस जो OIC है उसकी वजारत खारजा के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सके, पेश नहीं कर सके। कैसी आलमी तन्हाई है कि इंडिया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, उसके पास टोटल 192 वोट्स में से 184 वोट वो हासिल कर गया। ये कैसी आलमी तन्हाई है? उसको तो मुंह छुपाते फिरना चाहिए था दुनिया में। आप नाकाम हो गए, आपकी सफारती पॉलिसी नाकाम हो गई है, आपकी दाखिला पॉलिसी नाकाम हो गई है, आपकी मुआशी पॉलिसी नाकाम हो गई है। आपका विजन ये है सिलेक्टेड वजीर आजम कि आप कहते थे कि जब मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। क्या उसने हल कर दिया? ये अगर आपका विजन है तो आपका अमल क्या हो सकता है? लीडरशिप अपने विजन से पहचानी जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था जिसने कश्मीर के मसले पे कहा था कि मैं इंसान हूं। मियां साहब कहा था कि मैं इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं, मैं गलती कर सकता हूं किसी भी वक्त, लेकिन कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसमें मैं नींद में भी गलती नहीं कर सकता। ये वो हमारा कायद जुल्फकार अली भुट्टो है। आप ट्रंप की सालसी मानते थे। अगर ये सालसी है तो लोगों को बताइए ये कैसी सालसी है। उसने अगर सालसी करनी थी तो कहीं यही सालसी नहीं थी। पाकिस्तान का कोई बच्चा भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कोई ऐसी सालसी करवाए हो कि इंडिया के पास कश्मीर जो है वो इंडिया का और पाकिस्तान के पास कश्मीर पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का कोई बच्चा ऐसी सालसी नहीं मानेगा। पाकिस्तान का कोई फर्द ऐसी सालसी नहीं मानेगा। कश्मीर का कोई बच्चा ऐसी सालसी नहीं मानेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी कोई सालसी नहीं मानेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ यही कहेगी कि जो इस्तिस्वाब राय है, इंडिया अगर समझता है कि उसके साथ है कश्मीर के लोग तो छोड़े और इस्तिस्वाब राय करवाए। वहां पे यूनाइटेड नेशन की फौजें भेजे और वहां पे इंडियन आर्मी को खाली करवाए। मैं सलाम पेश करता हूं कश्मीर के उन शहीदों को, कश्मीर के उन बच्चों को, कश्मीर की उन माओं को, कश्मीर की उन बहनों को जो अपने लहू से ये आजादी की जंग सींच रहे हैं, जिनका लहू कश्मीर के पानियों में बहता है तो वो पंजाब के दरियाओं में आता है। पंजाब की धरती या सारे पाकिस्तान की धरती उन पानियों से सैराब होती है जिसमें कश्मीरियों का लहू मिला होता है। तो उससे उगने वाली फसलें अगर अनाज हम खाएंगे
तो हम कश्मीरियों से कैसे गद्दारी कर सकते हैं? पाकिस्तान का कोई फर्द कश्मीरियों से गद्दारी नहीं कर सकता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन उस अलम को लेकर आगे बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज यौम स्याह मनाया है सारे पाकिस्तान के अंदर और खासकर पंजाब के अंदर। मैं आप सब दोस्तों का भी मशकूर हूं। हम इस जंग को लड़ते रहेंगे जब तक कश्मीर की आज़ादी नहीं होती, जब तक कश्मीर का फैसला कश्मीरी नहीं करते, तब तक ये खित्ता अमन नसीब नहीं हो सकता। अगर आज खून वहां पे बह रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि अमन की किरणें भी फूटेंगी तो कश्मीर की वादियों से फूटेंगी और कहीं से अमन पैदा नहीं हो सकता। हम एक ऐसे खित्ते में बैठे हैं जो एटमी जंग के धाने पे है। हाँ, हम एटमी जंग नहीं चाहते, हम इस मुल्क के लोगों की, इस खित्ते के लोगों की बका चाहते हैं, लेकिन किसी बुज़दिली की बुनियाद पर नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुर्रत, उसकी हिम्मत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जुर्रत और उसकी हिम्मत के मुताबिक हम बिल्कुल जवाब देना चाहते हैं। उन भुट्टो का नवासा, बीबी का बेटा वही अलम लेकर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द वो कश्मीर जाएंगे और अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। मैं आखिर में फिर सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस एहतजाजी कैंप का एहतमाम किया है। और डॉक्टर एहसन साहब, आपका भी मशकूर हूँ कि ये हमारे जो पंजाब की तंजीम है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एहसन साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आपके लिए हर प्लेटफॉर्म हाजिर है। सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया, प्रेस वालों का कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और जनाब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, जनाब रहमान जान साहब, अल्लामा यूसुफ रहमान साहब और मोअज़्ज़ज़ मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का दिन जैसा कि आपको मालूम है कि कश्मीरी और पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान और कश्मीर में यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। हमें फख्र है अपने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे और अपनी पार्टी पे, क्योंकि